اگر دل نواز ہو. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب کی خاص بات میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر. وزیر اعظم 29 جنوری کو قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا کریں گے افتتاح. رحمان خان نے کہا وقف جائیدادوں پر قبضہ فوجداری جرم. دہلی میں سماجی اور ملی تنظیموں کا مشترکہ اجلاس. مسلم مسائل کو منظم طریقے سے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی طے. مظفر نگر فسادات کے معاملے میں مرکز کو بھی ادا کرنا چاہیے اپنا کردار. متاثرین سے ملاقات کے بعد سی پی آئی مالے کا مرکز سے مطالبہ. اور ملک سے کوسوں دور ایک ادیب پچھلی 3 دہائیوں سے کر رہا ہے اردو کی خدمت. معروف ڈرامہ نگار جاوید دانش کے کارناموں پر ایک نظر. مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا 29 جنوری کو افتتاح کریں گے. کانگریس صدر سونیا گاندھی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی. رحمان خان نے کہا کہ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن ان کا دیرینہ خواب تھا اور اس کے قیام سے وقف جائیدادوں کو ترقی حاصل ہوگی. مرکزی حکومت نے ملک کی وقف جائیدادوں کی ترقی کے لیے قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا ہے. 31 دسمبر کو باقاعدہ اس کا قیام عمل میں آیا. مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 5 لاکھ ایکڑ پر وقف جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے 50% وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہے. رحمان خان کا کہنا ہے کہ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کے قیام کے ذریعے وقف جائیدادوں کو ترقی دی جائے گی اور کمرشل بنیادوں پر انہیں فروغ دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ 29 جنوری کو اس وقف ترقیاتی کارپوریشن کا افتتاح کریں گے. انشاءاللہ 29 جنوری کو اس کا فارمل افتتاح ہمارے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اور کریں گے اور یو پی اے کی چیئرپرسن श्रीमती سونیا گاندھی جی بھی اس میں موجود رہیں گے ایز اے چیف گیسٹ. مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ وقف جائیدادوں کی لیز کی مدت زیادہ سے زیادہ صرف 3 سال ہوگی. کہ رحمان خان نے بتایا کہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد لیز کی مدت خود بخود ختم ہو جائے گی. وقف جائیدادوں کا کرایہ مارکیٹ ریٹ کی بنیاد پر طے کیا جائے گا. مرکزی وزیر اقلیتی امور نے مزید بتایا کہ وقف جائیداد پر قبضہ ایک فوجداری جرم قرار دیا گیا ہے. ہم وقف کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ کرنا کرمنل افینس کر دیا گیا ہے. یعنی انکروچمنٹ کا ڈیفینیشن کو ہم نے وائڈن کر کے کوئی بھی شخص اگر اوقاف کی پراپرٹی پہ قابض ہے یا بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے یا کوئی لیز اگریمنٹ نہیں ہے اور وہ لیز اگریمنٹ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے تو وہ ناجائز قبضہ قرار دیا جائے گا. کے رحمان خان نے بتایا کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کے بعد سینٹرل وقف کونسل کو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور اسے ایک ریگولیٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اب سینٹرل وقف کونسل
ملک کے تمام وقف بورڈوں کا نگراں ادارہ بن گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یو پی اے حکومت اقلیتوں کی ہمہ جہت ترقی کی پابند ہے اور اسی سلسلے میں قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ غالب اکیڈمی دہلی میں مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنان کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں درجنوں تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں مسلم این جی اوز اور اداروں کے ذمہ داروں نے مسلمانوں کے اہم مسائل پر متحد ہو کر کام کرنے سے اتفاق کیا تاکہ مسلمانوں کی آواز کو منظم پیمانے پر ایوانوں تک پہنچایا جا سکے۔ مسلم لوگ ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں سے، اپنی اپنی برادریوں سے، اپنے اپنے تنظیموں سے باہر نکلیں اور ایک ہو جائیں، ایک ہو کر ہم آج جو موجودہ حالات ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہیں، ان حالات کا جائزہ لے کر یہ طے کریں کہ ہمیں آنے والی لوک سبھا کے الیکشن میں یا ہونے والے آئندہ اسمبلی الیکشن میں مسلمانوں کو کس سمت جانا چاہیے۔ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بہت ساری سنستھاؤں نے، بہت ساری جو بھی ہیں انہوں نے مطلب اکٹھا ہونے کی کوشش کی، لیکن کچھ کر نہیں پائے۔ لیکن ان کی سوچ نے جو یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم کمیونٹی کے جو بھی مطلب سے برادریاں ہیں ان کو سب ایک جگہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی بات کی ہے انہوں نے۔ سی پی آئی مالے نے مظفر نگر فسادات کو سیاسی اور مجرمانہ سازش قرار دیا ہے۔ پارٹی نے لکھنؤ میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے۔ فساد متاثرین کو انصاف دلانے اور ان کی بازآباد کاری کے لیے مرکزی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ سی پی آئی مالے کی ایک ٹیم نے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں دنگوں کو سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کی ملی بھگت قرار دیا گیا۔ کھلے عام کلکٹریٹ پر پردرشن کر رہے تھے، جس کو ہم لوگوں نے سوئم دیکھا جانا ہے، اور بالمکن جی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور سرکار ان اپرادھیوں کی جو دنگے میں نامزد ابھیوکت ہیں، ہتیاؤں کے ابھیوکت ہیں، بلاತ್ಕಾروں کے ابھیوکت ہیں، ان کی گرفتاریاں نہیں کر رہی ہے۔ تو سرکار نے ایک میسج دے دیا ہے۔ راحت شیوروں سے سرکار نے ہاتھ پوری طرح پیچھے کھینچ لیے۔ کسی بھی راحت شیور میں سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کے پنرواس کی ویوستھا کیجیے، ان کے زمین کا ملیانکن کیجیے، ان کے آواس کا ملیانکن کیجیے، اور یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ کیندر سرکار جو بہت اس میں اپنے کو سادھو بنائے ہوئے ہے وہ غلط ہے۔ کیول دھارا 356 نہیں ہوتی کہ اب راج سرکار کو ہٹا دیجیے، ایک دھارا 355 بھی ہے، جس کے تحت اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں ہیں اور دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ راجیہ سرکار کو بائی آرڈر نردیشت کر سکتی ہے کہ آپ یہ کریے۔ مظفر نگر میں جو 6 FIR ہوئی ہیں جن مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، اس پورے ایریا کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں کی مہیلائیں یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ہمارے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، کیونکہ وہاں کھاپ پنچایت بہت پرومیننٹ طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو ہمارا یہ جو FIR درج ہوئی اس کے خلاف بھی پورا ایکشن ہونا چاہیے جن لوگوں نے بلاತ್کار کیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیمانڈ ہے ہم لوگ۔ سیاسی جماعتوں میں سیاسی لیڈران کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مغربی بنگال کی ریاستی کانگریس میں پرانے لیڈران کی شمولیت کو بنگال کی سیاست میں نئی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ عام چناؤ سے پہلے لیڈروں کی اچھل کود بڑھ گئی ہے۔ ترنمول کانگریس کے MP سمن مترا نے 21 جنوری کو استعفی دے کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ سلیمان خورشید، جنہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وہ بھی مترا کے پیچھے ہو لیے۔ سلیمان خورشید کا شمار مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اب وہ کانگریس کے بینر تلے مسلمانوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جو موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں کہ فرقہ پرستی جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں میں ایک انتشار بھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے کچھ مسلم علماء حضرات ہی اس میں ملوث ہیں۔ ایسی صورت میں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی مجھے کہ جس کے ذریعہ ہم مسلم عوام تک بھی پہنچ سکیں اور ہمارے ملت کے علاوہ قوم تک بھی پہنچ سکیں۔ ترنمول کانگریس اسے بے مطلب کی دوڑ بتا رہی ہے تو کانگریس اسے نیک شگن سے تعبیر کر رہی ہے۔
देखिए, जो लोग तृणमूल में कोई जगह नहीं पा रहा है वो लोग जा रहा है, उससे कोई दौल का फर्क नहीं पड़ता। दौल अभी बड़ा हो गया, अभी तो कमजाद अली और सुलेमान खुर्शीद के अलावा और इम्पोर्टेंट कोई लोग नहीं गया था। ये लोग का कोई पब्लिक बेस नहीं है, अभी दे आर माने डेविएटेड फ्रॉम पब्लिक, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुसलमान की अक्सरियत तो आज भी कांग्रेस के साथ है। चंद एक लोग गए थे, लेकिन उनको भी अब एहसास हो रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने किया था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क में इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में मगरबी बंगाल की जानिब सबकी निगाहें हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद मरकजी हुकूमत की तश्कील में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की हिस्सेदारी मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस के ये लीडरान तृणमूल कांग्रेस की इस दावेदारी को रोकने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अक़लियती महकमे की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अगले पार्लिमानी चुनाव में रियासत की 2 सीटों पर अक़लियती उम्मीदवारों को मौका देने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में अक़लियती कारकुनान का एक वफ्द जल्द ही रियासत के सरबराह सुखदेव भगत से मुलाकात करने वाला है। चाहे वो किसी भी पार्टी से आवे, एक अल्पसंख्यक को मौका दिया जाए कि वो राज्यसभा जा सके, चूंकि चुनाव में टिकट हम लोग को होता नहीं है और जितना भी बहुत मुश्किल होता है लोकसभा, तो राज्यसभा में एक अल्पसंख्यक को दिया जाए। उसके लिए अब पार्टी के अंदर जिस तरह माइनॉरिटी को, स्पेशली मुस्लिम्स को और क्रिश्चियन ईसाई को जिस तरह कांग्रेस पार्टी में इग्नोर किया जा रहा है, जो इसका मुख्य वोट बैंक है, प्रदेश नेतृत्व से हम लोग ये बात का आग्रह कर रहे हैं कि लगातार हम लोग की उपेक्षा की जा रही है इस संगठन का, तो इस संगठन का समस्याओं को लेकर एक बार जरा सा जागरूक हो। अब 22 जिला में माइनॉरिटी को लेकर जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने योजना दिया था, उस पर विस्तार से पूरा जिला कमेटी। हाई स्कूल के तलबा में ट्रैफिक के तय शऊर को बढ़ाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मोबाइल वैन तैयार की है। इस वैन के जरिए तलबा को खास तौर पर उर्दू जबान में तैयार की गई वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है।
मोहम्मद आदिल अख्तर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हैं। उन्हें फिलहाल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तदरीस की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आदिल अख्तर अब तक शहर हैदराबाद के तकरीबन 300 स्कूल्स में तलबा को ट्रैफिक के कवानीन और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मालूमात फराहम कर चुके हैं। एक वीडियो मोबाइल वैन लेकर आदिल अख्तर मुख्तलिफ स्कूलों को जाते हैं और वहाँ खास तौर पर हाई स्कूल के तलबा को मालूमाती वीडियो और फिल्म दिखाते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हम स्पेशली कवर करते हैं जो अभी कुछ दिनों में कॉलेज में जाने वाले हैं। वहां पर जाके ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्री हो जाते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखिए, डेली पेपर अगर आप उठा कर देखें तो उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे फलाने पे एक्सीडेंट हो गया, वो एरिया में एक्सीडेंट हो गया, इधर पे एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने खासकर ये मोबाइल इस वास्ते बनाया कि बच्चों को, पूरे बच्चों को तो हम हमारे टीटीआई के पास यानी कि ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने तौर पे वहां पर जाएंगे जहां पर बच्चे ज्यादा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अमित गर्ग साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव ले हैं बच्चों को शऊर पैदा करने का ट्रैफिक का, ये खास तौर से इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये ना समझ होते, ये समझते इनको एनर्जी से भरे हुए रहते, तो ये समझते कि कुछ भी कर सकते हैं हम, और उसमें वो लोग अपनी कीमती जानों का उसका नुकसान उठा रहे हैं। मेरा बोलना तो ये है कि ऐसे तमाम स्कूल्स में ऐसे कैंप्स होना चाहिए, ऐसे सेशंस होना चाहिए ताकि तमाम लोगों में शऊर। वीडियो फिल्म के साथ साथ इस मोबाइल वैन के जरिए ट्रैफिक से मुताल्लिक आवाम में शोर बेदारी की तरगीब भी दी जाती है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोड पे जाते वक्त हेलमेट यूज करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ना चाहिए, फोन यूज नहीं करना चाहिए और स्पीड थोड़ी कम रखना चाहिए। इससे क्या फायदा क्या होगा? मैं ये मैसेज अपने फादर को देना चाहूंगी कि कभी गाड़ी ड्राइव करते वक्त फोन पर बात नहीं करना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। ज्यादातर एक्सीडेंट्स लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। हमें जब रोड पे हम जब सफर करते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे वाली गाड़ियां कैसे आ रही हैं, उनको देखते हुए ही हमें अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए और हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सोचना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाने के बाद तलबा को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खासतौर पर उर्दू में शायद किताबचे तकसीम किए जाते हैं। इन किताबचों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात दर्ज की गई हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भोपाल के बड़े तालाब में डूबने वालों को बचाने वाले गोताखोरों को एजाज से नवाजा। भोपाल में गोताखोर यूं तो कई बरसों से लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी समाजी तंजीम ने इनकी कारकर्दगी की सताइश की और इन्हें एजाज से नवाजा। बिहार में उर्दू टेट के इम्तिहान में हुई गड़बड़ी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवारों ने एहतजाज का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में तकरीबन 1 दर्जन सवाल गलत दिए गए थे, जिसके सबब कई हजार उम्मीदवार नाकाम हो गए। इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किए जाने के खिलाफ एहतजाज का फैसला लिया गया है। कारवान उर्दू इस एहतजाज की क़यादत कर रहा है। कारवान उर्दू के सदर और साबिक अपोजिशन लीडर प्रोफेसर गुलाम गौस की रिहाइश गाह पर जमा ये भीड़ भले ही कम तादाद में नजर आ रही है, लेकिन इनका मसला काफी बड़ा है। दरअसल 2011 में नीतीश हुकूमत ने सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में एक उर्दू टीचर को बहाल करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नजर 1 अक्टूबर 2013 को 27,000 उर्दू टीचरों की बहाली के लिए इम्तिहान मुनक्कद किया गया, जिसमें 2,21,513 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हुए, जिसमें महज 15,310 उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल हुई। दरअसल टीईटी के इस इम्तिहान में पूछे गए सवालों में दर्जन भर सवाल गलत थे। इस सिलसिले में कानून साजिया में हंगामा हुआ तो वजीर आला नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर 2013 को ये ऐलान किया कि 1 से 2 रोज में उर्दू टीचरों का मसला हल हो जाएगा। लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी नाकाम हुए उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, वो शरारत कर रहे हैं और उनकी शरारत की वजह से हुकूमत जो है बदनाम हो रही है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स पे नकील कसें
اور प्रथम फर्स्ट पेपर जो है हम लोग का 1 दर्जन गलतियां हैं उसमें, और सेकंड पेपर में जो 1 दर्जन से ज्यादा गलतियां हैं उसमें मेरा 3 नंबर से छुटा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, जो बहुत मामूली क्वेश्चन है, जो सारे बच्चे जानते हैं, वो सब क्वेश्चन में गलत आंसर शीट की वजह से हम लोगों को कम नंबर दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग फेल हुए। कारवान उर्दू इनकी लड़ाई की क़यादत कर रही है। कारवान ने ऐलान किया है कि टीईटी के इम्तिहान में नाकाम हुए लोगों को हुकूमत 15 नंबरों का ग्रेस दे। ऐसा नहीं किए जाने पर कारवान उर्दू 30 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ धरना देगी। आगामी जो है वो 30 तारीख को पटना के कारगिल चौक पर महाधरना दिया जाएगा कारवान उर्दू की जानिब से टीईटी उर्दू अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए। और 18 जनवरी को हम लोग बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, पटना की सड़कों को जग तक कर देंगे। बिहार में उर्दू टीचरों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला काफी पुराना है। एक तो स्कूलों में बरसों से खाली उर्दू असामियों पर बहाली नहीं हुई है, और जब बहाली का अमल शुरू हुआ तो साजिशों का एक न खत्म होने वाला दौर भी शुरू हो गया। ईटीवी न्यूज पटना। तालीम के बगैर न मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और न कौम व मिल्लत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार फारसी की मारूफ उस्ताद डॉक्टर आसिफ जमानी ने लखनऊ में किया। रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के तासीस के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ जमानी ने यह भी कहा कि वही कौमें तरक्की के रास्ते पर जा सकती हैं जिन्होंने तालीम को हुसूल को अपना नज़्बुल ऐन बनाया है। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए असनाद और मेडल भी अता किए गए। लखनऊ के कैसरबाग में मुनक़दा इस तकरीब में लखनऊ के मेयर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर, शिक्षा के हमारा मुल्क, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने एजाज रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत डिमांड पर है, उसकी बुनियाद रखी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची यूनिवर्सिटी के शुबे उर्दू में महाजिर अदब के उन्वान पर लेक्चर हुआ।
इस प्रोग्राम में कनाडा से आए मारूफ ड्रामा निगार जावेद दानिश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को डॉक्टर सैयद अहमद एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में रांची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एम रजीउद्दीन भी मौजूद थे। जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले दुनिया के अदब को पढ़ना होगा, और उर्दू में ये काम कम है। हमने कोशिश की है, बहुत कुछ काम इस पे किया है, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तराजिम पे काम करें, तर्जुमे को देखें, तभी उनको पता चलेगा दुनिया कहाँ जा रही। तो ये एक बहुत ही मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा काम होना चाहिए। हमारे साथी से भी मैं गुजारिश करूंगा। कनाडा में मुकीम जावेद दानिश एक तवील अरसे से हिंदुस्तानी ड्रामों को फरोग देने में मसरूफ हैं। इन दिनों जावेद दानिश रांची के दौरे पर हैं। पेश है ये रिपोर्ट। ये हैं जावेद दानिश, जिनका आबाई वतन लखनऊ है, लेकिन तकरीबन 30 सालों से टोरंटो में मुकीम हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद वो उर्दू में लिखते रहे हैं। उनकी 1 दर्जन किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 70 के दहे में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में मुलाजमत के दौरान जावेद की मारूफ ड्रामेटिस्ट हबीब तनवीर से मुलाकात हुई, जिनसे बंगला ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा करने की तरगीब मिली और इस तरह रेडियो ड्रामा पर मुश्तमिल परमीथियस नामी किताब मंजर-ए-आम पर आई और तब से वो उर्दू और ड्रामों के फरोग की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो मैं सबों को ये कहता हूं कि बिकॉज आई थिंक इन उर्दू, फॉर दैट आई राइट इन उर्दू। तो मैं सोचता उर्दू में, इसलिए लिखता भी उर्दू में। उर्दू मेरी मादरी जबान है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो टोरंटो में बसे कोई 30 साल हो गए, मगर उर्दू का काम कर रहे हैं हम लोग, और उर्दू बहुत ही जिंदा है, मुतहर्रिक है। वहाँ थिएटर उर्दू का नहीं था, हमने उसे आबाद किया। रंगमंच कनाडा के नाम से हमारा थिएटर ग्रुप है। जो हजरात देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है www.rangmanch-canada.org। तो उस पर हमारी सारी एक्टिविटीज नजर आएगी। जावेद दानिश को सफर का बेहद शौक है। वो अब तक दुनिया के बेशतर मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान के सफर के दौरान उन्होंने सफरनामा, आवारगी और हिजरत के तमाशे नामी किताबें लिखी। हालिया दिनों उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम है बड़ा शायर छोटा आदमी। उर्दू में अगर आप ढूंढेंगे कि अफ्रीकी अदब क्या है तो कोई किताब नहीं है, आज भी नहीं। वो पहली किताब थी काले जिस्मों की रियाजत, उसका तर्जुमा किया, बहुत कामयाब किताब थी। उसके बाद बहुत बड़ा मसला हमारी फलस्तीन का है, फलस्तीन के साथ साथ इसराइल जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया कि एक दूसरी किताब आई तर्जुमे की जिसका नाम था एक बाप की औलाद, यानी इब्राहिम की औलाद है हम सब, मगर लड़ रहे हैं, मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो उन दोनों को मुताला करने के लिए कि भाई क्या है कंपैरेटिव स्टडी, तो एक बाप की औलाद में इसराइली अदब और फलस्तीनी अदब दोनों का तर्जुमा किया। ये किताब भी आपको दूसरी किसी कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने इसराइली अदब का तर्जुमा नहीं किया। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर थिएटर से जुड़े हैं। यही वजह है कि वतन से कोसों दूर रहकर भी वो हिंदुस्तानी रंगमंच को फरोग देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। नेताजी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश मनाई। वहीं कोलकाता में भी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नेताजी को गुलाह अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर सियासी जमातों ने रियासत में खवातीन के साथ बढ़ते मज़ालिम को अफसोसनाक बताते हुए हुकूमत से सख्त इक़दाम की अपील की। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें